second video. Here it is. Already I told you that notice writing has been divided into 4 to 5 parts, as that is the simple notice writing, notice, and then after we see the notice of classified group, and classified group notice has been divided into different parts as advertisement, now, and today I am going to teach you advertisement. Also we see the other form of notice, that is the poster writing, poster making or poster writing, that is writing. And after that we write invitation, then invitation, poster writing, advertisement and notice. There are 4 types of notice writing. And these notice writings are written in different manner. Just the first part I am going to tell you. Advertisement, and what should be there in the advertisement. Yes, and this advertisement or the advertisement is known as classified group. जैसे कि आप you would have seen no doubt in the newspaper that many more varieties of वर्गीकृत विज्ञापन is found in Hindi newspaper, and whenever you find the English newspaper that you will see classified का मतलब हो गया वर्गीकृत विज्ञापन. Now we should write this classified or any kind of notice. I told you in my previous video that it should not be more than within 50 words. Within 50 words. This is the word limit. 50 word is the word limit of all kinds of notice writing, poster making, invitation writing, and notice writing. 50 word is sufficient, not more than this. And along with this I told you that each notice should be written in the box. As here I have written here, it is always written in box. Always it is written in box. मतलब हमेशा आप बॉक्स बना करके बॉक्स में लिखा करिए. अब यहाँ मैंने छोटा बॉक्स बनाया. It should not be only for example I have made. Just in the copy you have to make the box. In short phrases you have to write the notice or advertisement or anything. That is notice writing is a common thing. In short phrases, should not write a complete sentence that should explain deeply, because we have to be careful regarding the limitation of the words, that we have to pay money for each and every word. It is clear. So we should be very careful regarding the short phrases, that we have to use short phrases. You will say it, that how will it be used. As in that short phrase, what side will do? Avoid article writing. Article, that is a, an and the. A, an and the. Avoid the use of a, an and the. Avoid. ये नहीं कि एकदम बिल्कुल आप कैंसिल कर दीजिए. हो सकता है कहीं ज़रूरत पड़ ही जाए, तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन मोस्टली आपको अवॉइड करना. कंजंक्शंस को नहीं यूज करना. कंजंक्शन जैसे ज्वाइनिंग वर्ड्स जो होते हैं, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं,
इस तरह के वर्ड्स को नहीं करना, जैसे एंड है, सो है, देयरफॉर है, बट है, कंजक्शन है ना। और प्रीपोजिशंस, खास करके प्रीपोजिशंस का भी यूज नहीं करना चाहिए। यानी कि हमको अवॉइड क्या करना चाहिए, प्रीपोजिशन से अवॉइड करना चाहिए, इन, आन, अपान, एबव, ओवर, ठीक है। कंजंक्शंस, दैट, इफ, वेदर इत्यादि। सो आर्टिकल ए एन और द, इसका यूज हमें नहीं करना चाहिए अपने इसमें, तो वो 60 फ्रेजेस बनता है। तो जब हम 60 फ्रेजेस लिखते हैं तो हमारे वर्ड लिमिट कम हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या करना है, यूज सिंपल लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि आप लिटरेरी लैंग्वेज को यूज कर दें, बहुत बम्बास्टिक वर्ड यूज करते हैं तो डिक्शनरी अब देखना पड़े उसको, क्योंकि इट इज़ सिंपल थिंग दैट ईच एंड एवरी हैव बीन एजुकेटेड, हाउएवर ईच वन इज नॉट deeply proficient in English language. Therefore your language should be very simple, very common to everybody, कि सभी लोग उसको कॉमनली जान सकें। इसलिए आपका लैंग्वेज जो है बहुत सिंपल होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, एकदम छोटा होना चाहिए, लेकिन फैक्चुअल, एकदम बिल्कुल फैक्ट हो, ये नहीं कि उसमें बढ़ा चढ़ा करके, नहीं, फैक्चुअल। इसके अलावा the heading of the advertisement is written on the top inside the box in capital letter. In my previous lecture you would have got the clear cut experience of this, that whenever you wrote the notice, you wrote here the name of the school in capital letter. Yes, you wrote here the word notice in capital letter. You have written the date here. Then after, in running handwriting, you have written the topic of the notice. And after that you wrote the topics, that is the contents, subject, whatever they are, what, when, where. This one thing, the answer of all these: what, when, where. Now you have written the answer of all these three, and then after you put the signature and your designation also you have mentioned here. But in such advertisement there is no way for designation, and I am going to just erase it and make the another format for advertisement writing. Dear, just you have patience now. चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉक्स में कैसे क्या किया जाएगा, लेकिन इसके पहले यू हैव टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होते हैं, वर्गीकृत विज्ञापन होते हैं, वो लगभग कितने तरह के होते हैं, और सबका लगभग एक ही तरीका है लिखने का, कि सबको हम क्या करते हैं, सिंपल एक बॉक्स में बना के लिखते हैं। अब अभी आपने जो देखा कि एडवर्टीजमेंट जिस चीज़ का होता है उसका हम यहाँ कैपिटल लेटर में वो नेम लिख देते हैं कि किस तरह का एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, अब जैसे आप एडवर्टीजमेंट जान लीजिए, लास्ट एंड फाउंड, तो वो जब भी क्वेश्चन आता है कहता है कि राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर लास्ट एंड फाउंड कॉलम, लास्ट एंड फाउंड कॉलम। उसी तरीके से फॉर सेलर एंड परचेज कॉलम, उसी तरह से सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड कॉलम। फिर यहाँ प्रॉपर्टी के लिए आता है टू लेट कॉलम, फॉर सेल और फॉर परचेज कॉलम। यहाँ एजुकेशनल मैट्रिमोनियल भी होता है,
जो आप सहनाई करते हैं मैट्रिमोनियल है। तो इस तरह से ये सारे जो हैं वो कॉलम में के लिए वर्क कहे जाते हैं। नाउ इट इज सेड टू बी कॉलम, कि इन दिस कॉलम यू राइट कॉलम। तो सपोज दैट द नोटिस बिलोंग्स टू लास्ट एंड फाउंड कॉलम, सो यू हैव टू राइट हियर। देखिए अब क्या है कि यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग टू थिंग्स, you are just observing two things, the last and found. Both the things cannot happen together. ऐसे नहीं है कि दोनों चीज़ एक ही साथ हो गए, कि आपका गुम भी हो गया, आपका मिल भी गया। कोई सामान, किसी का सामान आप पा गए और आपका सामान गुम हो गया। लास्ट एंड फाउंड एक नहीं होता है। तो यू हैव टू राइट द नोटिस ईदर फॉर लास्ट ईदर फॉर फाउंड। अब जो कुछ भी मान लीजिए आपने अपना एक फिजिक्स का बुक खो दिया है, ठीक है। देखिए अब यहाँ जो एडवर्टीजमेंट होता है दो तरह का यहाँ होता है। लास्ट एंड फाउंड, स्पेशली लास्ट एंड फाउंड कॉलम इज रिटन फॉर टू थिंग्स। तो मैं सबसे पहले वही बता दूं कि जो नोटिस लिखी जाती है, तो नोटिस के तौर पर अगर आपको लिखना रहता है, जैसे स्कूल में जब लास्ट एंड फाउंड हो जाता है, मान लीजिए आपकी फिजिक्स की बुक गायब हो गई है, सपोज दैट यू हैव लास्ट योर फिजिक्स बुक इन द स्कूल, देन यू हैव टू राइट the name of school. If you have, मैं लिखता हूँ, suppose you have lost your physics book, ठीक है। राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, ठीक। नाउ तो ये दिस नोटिस यू हैव टू राइट फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड। तो अब यहाँ क्या होगा, जिसे अब ये इस एडवर्टीजमेंट से लास्ट एंड फाउंड इस नोटिस राइटिंग से डिफरेंट है, क्योंकि दिस नोटिस बिलोंग्स टू योर स्कूल एंड दिस लास्ट एंड फाउंड कॉलम बिलोंग्स टू योर क्लासिफाइड ग्रुप, देन द वेज ऑफ बोथ द राइटिंग्स आर डिफरेंट। अब ये हम क्या कर रहे हैं, ये क्लासिफाइड है, ठीक है, ये क्लासिफाइड के लिए है, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, स्कूल नोटिस के लिए कर रहे हैं। ये स्कूल नोटिस है, यानी एक नोटिस राइटिंग है। अभी ये क्या है, नोटिस राइटिंग है, ठीक। तो ये लास्ट एंड फाउंड है लेकिन नोटिस है, और ये लास्ट एंड फाउंड है, ये क्लासिफाइड ग्रुप का एडवर्टीजमेंट है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आप थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, यू मस्ट नॉट बी अ बिट कंफ्यूज्ड, क्योंकि ये जो क्लासिफाइड है, देखिए द कंटेंट ऑफ बोथ द पॉइंट्स विल बी द सेम बट द फॉर्मेट इज डिफरेंट। यहाँ केवल फॉर्मेट डिफरेंट है लेकिन कंटेंट लगभग एक ही है, ठीक। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं द नेम ऑफ द स्कूल, मान लीजिए आपने लिख दिया IRS पब्लिक स्कूल गोरखपुर, यू हैव रिटन, ठीक। तो अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ नोटिस लिखना है, ठीक। यहाँ आपको डेट देना है, आज का डेट दे दीजिए, ठीक। यहाँ फिर आपको क्या करना है, लास्ट फिजिक्स बुक, ठीक है ना, कि लास्ट फिजिक्स बुक या लास्ट माई फिजिक्स बुक, ये कंटेंट है आपका यहाँ, ठीक है।
अब इसके बाद आप बताइएगा कि आई हैव लॉस्ट माई फिजिक्स बुक, या अब आपको डेट, टाइम, ठीक, बुक नेम, राइटर, एक मिनट, बुक नेम हो गया, बुक नेम हो गया। उसके बाद अब आप राइटर का नाम लिखिए, आथर, राइटर हो गया, कि डेट हो गया, टाइम, बुक नेम हो गया, आथर हो गया। अगर कवर है तो कवर का कलर दे दीजिए, किस कलर का कवर है। अब यहाँ क्या करता है आप, अब यहाँ आप देखते हैं कि द फाइंडर विल बी रिवार्डेड, विल बी गिवन अ बेटर ट्रीट। आप भाई आपकी किताब पा गया, इम्पॉर्टेंट किताब है, तो ये इस तरह से। अब इसमें मान लीजिए कि डेट में, इस डेट में मैं गुम कर दिया, लगभग कौन सा टाइम था, ठीक है, कहाँ थे हम, यानी कि या तो प्लेग्राउंड में तो किताब लेके जाएंगे नहीं, लाइब्रेरी में लिख दीजिए कि लाइब्रेरी में, यानी कि वेयर में आप आ जाइए। वेयर है, डेट है, टाइम है, बुक नेम है, ऑथर है, कवर है, कलर है। तो इतना आपने कर दिया कि इसको आपने प्रॉपर वे में लिख दिया, यू हैव रिटन इट इनटू द प्रॉपर सेंटेंस। तो अब आपने लिख दिया, उसके बाद यहाँ आपने क्या किया, यहाँ तो अब लिखने के बाद आपने कह दिया कि द फाइंडर है विल बी गिवन बेटर ट्रीट या रिवार्डेड विद द ट्रीट, ठीक है। और आपने किसको रिटर्न करना है, तो रिटर्न इट टू द अंडरसाइंड या रिटर्न टू द प्रिंसिपल ऑफिस, तो आपने अपना साइन कर देना है। इसलिए ये एक तरह की स्कूल नोटिस में हो गई, ख़त्म हो गया ये। हम स्कूल नोटिस के बाद हम बेसिकली टुडे आई वुड लाइक टू टीच यू एडवर्टीजमेंट। सो अब यहाँ फॉर्मेट यही थोड़ा सा अंतर है और कुछ नहीं, ठीक है। अब अगर यही फाउंड वाला होता तो आप क्या लिखते हैं, फाउंड अ फिजिक्स बुक, ठीक है। तो लास्ट के लिए अलग होता है, फाउंड के लिए अलग होता है। फाउंड के लिए मान लीजिए आपको करना है तो आपने इंक्वायरी लेनी है। सपोज दैट यू हैव गॉट अ सूटकेस, suppose that you have got a suitcase or wallet, suppose that you have got a wallet, है, आपने वॉलेट पाया, you have got a wallet and you have seen that there is money in the wallet। अब कितना है उसका अनाउंस नहीं, मनी है, सम रिसीट्स हैं, कुछ रसीदें हैं, टिकट्स हैं, टिकट भी है, ठीक है। और अब आपने इसको पाया, इसको देखा, यू आर वेरी ऑनेस्ट, देयरफॉर यू लाइक टू राइट अ नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड दैट यू हैव गॉट अ वॉलेट, ठीक है, कि आपने एक वॉलेट पाया और उसमें नोटिस लिखा। तो यू हैव टू राइट इन द सेम वे, here the name of the school, here the word notice, here the date, here the topic, found a wallet, found a wallet। अब देखिए, अब आप यहाँ करेंगे, अब वो ब्रांड उसका बताएंगे, ब्रांड, BRAND, ब्रांड बताएंगे, कौन सा ब्रांड है, ठीक है, कि किस ब्रांड का वो वॉलेट है, उसका कलर भी बता देंगे, इसका कलर क्या है।
और उसमें आप ये यू हैव टू शो दैट इट कंटेन्स मनी, receipts and a ticket. It contains receipt, money and tickets. Now the owner should contact with details of the wallet. Details of the wallet. ठीक है, या तो फिर आप ये कह सकते हैं कि आधार है, आधार है, ठीक है, आधार आप दिखा सकते हैं कि रिसीट नहीं, आधार है, या फिर आधार भी दिखा दीजिए, टिकट भी दिखा दीजिए, रिसीट भी दिखा दीजिए, मनी भी दिखा दीजिए, बट यू हैव टू राइट योर सेल्फ ऑल इन योर ओन वे. तो आपने इसका कलर दिया, आपने बता दिया कि ऑल दिस थिंग्स. नाउ द ओनर मे कॉन्टैक्ट इमीडिएटली or within 2 days or 3 days to the undersigned, and now detail the along with the details of wallet, along with the details of wallet. तो वॉलेट के डिटेल के साथ आकर के वो कांटेक्ट करें, इंक्वायरी करें और अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, ठीक. या फिर आप कोई ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए, जैसे स्कूल का ऑफिस है, या फिर आपका आप सेक्रेटरी हैं तो आपका अपना ऑफिस है, या हेड बॉय हैं तो आपका अपना ऑफिस है, हेड गर्ल हैं तो आपका अपना ऑफिस है. तो इस तरह से यू हैव टू गिव इट. सो आई थिंक दैट यू कुड अंडरस्टैंड द नोटिस राइटिंग ऑफ लास्ट एंड फाउंड, बट आई एम नॉट टीचिंग राइट नाउ. वट एवर आई हैव टॉट यू, it does not belong to the notice of classified group, because here you will put your signature and designation. If you are nothing rather than a simple student, then you have to write your class and section. You have to write your name and here class and section. So okay, so here school name, notice, date, now topic, that is found a wallet, and here you have to describe when you have got a wallet or which brand of the wallet, लेविस का है, किसका है, ब्रांड बता दीजिए, कलर उसका बता दीजिए, ये बता दीजिए कि उसमें मनी है, रिसीट है, टिकट है, आधार कार्ड है, हैं. तो प्लीज़, या फिर आधार नहीं है तो जिसका है द ओनर में कॉन्टेक्ट एंड गिव द डिटेल्स. डिटेल्स जरूर मांगिए. अगर आप डिटेल नहीं मांगते हैं तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे, मेरा 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 मेरा. तो फिर यू शुड बी केयरफुल. थैंक यू. ओके, नाउ अब हम चलते हैं ओरिजिनली, अब हम लास्ट एंड फाउंड पे आते हैं. हाँ, इसमें आप थोड़ा सा एक नोट लिख लीजिए, आप, मैं बता रहा हूँ. नोट क्या है, स्पेसिफिकेशन. ठीक है, क्या स्पेसिफिकेशन होता है, वेदर यू हैव लास्ट आर फाउंड, वेदर स्पेसिफिकेशन, वेदर यू हैव लास्ट आर फाउंड, मैंने इसको स्पेसिफाई करिए कि आपने पाया है कि आपने गुम किया है. इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग ऑफ द नोटिस. अच्छा, और फिर इसके बाद आपको आ सकते हैं सेकेंड पॉइंट करना, व्हाट लास्ट आर फाउंड. अगर लास्ट और फाउंड करना ही है, मान लीजिए हमको लिखना है, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि मैंने क्या खोया. अब उसका आप प्रोबेबल प्लेस भी बता सकते हैं और टाइम भी बता सकते हैं, प्रोबेबल प्लेस एंड टाइम. ठीक है, अगर आपने कुछ गुम कर दिया है तो जैसे उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस और वैल्यू ऑफ द आइटम फॉर यू, वैल्यूएशन. मनी मुद्रा से नहीं मतलब है. सपोज दैट यू हैव लॉस्ट योर सूटकेस एंड इन दैट सूटकेस यू हैव जस्ट योर सर्टिफिकेट्स एंड हाउ मच इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ a human being who is just going to face an interview. In case you are just going to face yourself, you are going to sit before the interview panel,
and you are without your mark sheets, you are without your certificates, then how is it possible to you to certify that you are so and so? It would be impossible for you. Therefore, such importance and value is this. In case you have missed your admit card and you are just going to enter into the examination hall, then without your admit card it is impossible to you to enter. So how will you enter into the examination hall? Therefore it is important. So such importance I am just giving you. As you have lost your physics book, and suppose that you should say that the examination is very near and it is very close, and so it is very important for me, therefore I request to the finders, return me immediately if it is. So like that. Therefore it is important to show the importance of that particular things in your life, that how much it is important. Why? Because it belongs to you. And if you have found it is, now it is not necessary to highlight the importance, but you have to highlight that something is found here, and please come and detailize the things. So here all these things, and therefore you have to detailize some more particular things, you have to detailize. Okay. Therefore, now my dears, please be ready for this one, and just you see, I am just going to give you a question on lost and found. Okay, be ready to write the questions. But before writing the lost and found question, you should see sale and purchase. Simply you should know all these things. Sale and purchase, that is sale, S-A-L-E. Whatever you want to sell it, or whatever you want to purchase, for this sale and purchase you write the advertisement. You write the advertisement, and I told you that advertisement should be written in this way. As on the top, what the topic of the classified advertisement should be written in capital letter. So sell what? Sell what? The thing whatever you want to sell. Sell a car. Sell a car. Purchase a car. Anything. अगर आप खरीदने वाले हैं, अगर आप बेचने वाले हैं, तो स्पेसिफाई करिए आप. You have to specify whatever you want to sell or whatever you want to purchase. ठीक? If you have to sell, now this is the thing, this is the format. If you want to sell anything, now start your notice here without any hesitation. Just you have written sale, and what should be sold? Sale, 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 महा सेल है. सो द साड़ी भी बेच सकते हैं, कुर्ता भी बेच सकते हैं, कार भी बेच सकते हैं. ठीक है. और हाउस फर्नीचर भी बेच सकते हैं. जैसे कि प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी भी बेच सकते हैं. ठीक है. यहाँ भी सेल परचेज है, प्रॉपर्टी भी आप बेच सकते हैं. इस तरह से कुछ भी आप बेच सकते हैं. घर भी बेच सकते हैं, ज़मीन बेच सकते हैं, घर या ज़मीन खरीद सकते हैं. तो देयर आर मेनी थिंग्स फॉर सेल एंड परचेज. वट एवर द आइटम्स यू सी, वट एवर द आइटम्स यू विजिट इन टू द मार्केट, एंड हाउ मच नॉलेज ऑफ सेल एंड परचेज यू पीपल हैव, ऑल दीज आर परचेजेबल एंड सेलेबल. खरीदने योग्य हैं और बेचने योग्य हैं. जो जो चीज़ें खरीदी जाती हैं वो चीज़ें बेची जाती हैं. तो इसके संबंध में अब आपको उसकी मेरिट, डिमेरिट तो कभी नहीं शो करनी है. डोंट राइट द डिमेरिट, यू हैव टू राइट द क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सच थिंग्स. आपको कार खरीदनी है तो आपको किस मॉडल की कार खरीदनी है,
विच मॉडल कार यू वांट टू बाय, कौन से मॉडल की कार खरीदनी चाहते हैं। सेकंड हैंड की बात मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट हैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। ये फर्स्ट हैंड पर तो जाएंगे शोरूम में आप खरीद लेंगे, उसके लिए एडवर्टीजमेंट ये काम नहीं होता है। वो शोरूम वाला एडवर्टीजमेंट डालेगा तो वो डालेगा तो कमर्शियल डिस्प्ले के नाम से एडवर्टीजमेंट डालेगा, जो पोस्टर के रूप में आएगा। अभी वो चीज़ बाद में है, वो 12th क्लास में पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ सेल और परचेज है। तो यहाँ मान लीजिए कि आपने अपना सेकेंड हैंड कार ही बेचना चाहे, तो आप उसके कार के मॉडल को लिखिए, उसका ब्रांड लिखिए, ठीक, उसका ब्रांड लिखिए, मॉडल लिखिए, और इस तरह से सारी चीज़ें करिए, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से, ठीक है। जो सेल हो गया तो आपने मॉडल दे दिया कार का, आपने उसका कलर दे दिया, आपने उसका माइलेज दे दिया, ठीक है। 1 हैंड ड्राइवन है, 2 हैंड ड्राइवन है, जो भी है, कितने किलोमीटर्स लगभग चली है उसकी रीडिंग आपने दे दिया, ठीक। और क्या माइलेज है आपने दे दिया, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट दे दिया आपने, निगोशिएबल मतलब इतने का निगोशिएबल है, उसमें क्या फैसिलिटीज़ है दैट शुड यू हैव डिस्क्राइब्ड, एयर कंडीशन है या क्या है कैसे, तो आपने उसको कर दिया। और नाउ द पार्टीज में कॉन्टेक्ट, यहाँ पार्टीज कहा जाता है, पार्टीज में कॉन्टेक्ट, इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टेक्ट, टू इंटरेस्टेड। अब आपने क्या दे दिया ना, उसकी क्वालिटीज़ दे दिया, मेरिटोरियस क्वालिटी दे दिया आपने। क्या किया, क्वालिटीज़ कैसा किया, मेरिटोरियस, मेरिटोरियस क्वालिटी आपने दे दिया, माइलेज दे दिया, जो भी आपका उस सामान से मतलब है कि आप का वो कौन सा सामान है, आपने उसको उसकी क्वालिटी दे दिया, कैसे कैसे है, क्या है, कैसे है। हम झूठ और सही की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी देनी है, जिसे ओनली दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर योर नॉलेज, इट इज़ ए काइंड ऑफ ट्रायल एंड टेस्ट ऑफ योर knowledge. Actually, we are not interested to whether my students should sell it or should purchase it, but there are many means of these services and job. As you say that there are customers, many company customers, and the customers are very polite and they always doing their duty for 24 hours, customer care. So what are they doing? What is the use of their study? If they have completed their MSc, BSc and whatever, B.Ed, B.Tech and so on, then what is the use of their being customer care? Are they applying their study into customer care? Only they have to learn 4 to 5 sentences and they have to pass to you. वही 4-5 सेंटेंस याद करके रट के बोल देंगे, वो आपके सामने आ जाएगा। ये सर, सॉरी सर, नो सर, ओके सर, प्लीज़ वेट मी, सर, remark me that how is my service for you, thank you sir, good day and so on। ये सब बोल के चले जाते हैं। उन्होंने BSc किया हो, B.Tech किया हो, M.Tech किया हो, उसके क्या मतलब है। तो उसी तरह से यह भी है कि भाई सर्विस का कोई ठिकाना नहीं है कि किस रेंज में आपको जॉब मिलेगी, बट यू हैव टू नो इट। तो दिस इज़ द क्वालिटीज़, तो यू हैव टू डिस्क्राइब द क्वालिटी। इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टेक्ट, इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टेक्ट विद इन 7 days ऑफ द एडवर्टीजमेंट, ओके, आर फोन मी टू, तो कांटेक्ट करें या फ़ोन करें। तो आपको अपना एड्रेस देना है, यहाँ एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर लिखना है। अब यहाँ जैसे 2 लाइन छोटा छोटा खींच करके आप लिखते थे, तो वो नहीं करना है, ठीक है। ये स्कूल नोटिस में होता है। तो यहाँ आपने पूरा पैराग्राफ में, एक ही पैराग्राफ में 4 लाइन, 3 लाइन, 5 लाइन के पैराग्राफ में, इन बिटवीन 3 to 5 or 4 line पैराग्राफ, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग विदाउट गिविंग एनी अदर पैराग्राफ। कोई दूसरा पैराग्राफ न देते हुए आपने इस पर करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। और फिर सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड के बारे में हम बात करते हैं।
थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ठीक भी नहीं है। हाँ, देखिए सिचुएशन वेंटेड और सिचुएशन वैकेंट के बारे में बात करते हैं। यहीं तक बताएंगे आपको, ये 3 पॉइंट बताएंगे, उसके बाद तो रोक देंगे। इसके बाद फिर ये प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको मिलेगा अभी, ये अभी कॉम्प्लिकेटेड है, ये इसको अभी नहीं, पहले समझने की ज़रूरत है। आपने इसको देख लिया, आपने इसको देख लिया। अब सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड के बारे में बात करते हैं। जैसे आप, ये सिचुएशन का मतलब है जॉब से है, जॉब से है, नौकरी से है, ठीक। फैक्ट्री वाला जो होता है या फर्म वाला होता है, ठीक, इंस्टीट्यूशन जो होता है, इंस्टीट्यूशन जो होता है वो वैकेंट कराता है, हाँ? सिचुएशन वैकेंट करता है कौन? इंस्टीट्यूशन। मैंने नौकरी हम नहीं देंगे, हमारे पास अगर कोई फैक्ट्री है, हमारे पास कोई अगर संस्था है, जहाँ 10, 5, 20, 50, 100, 1000 लोग काम करते हैं, तो हम नौकरी की वैकेंसी निकालेंगे, हम नौकरी की वैकेंसी निकालेंगे, तो क्या करता है? सिचुएशन वैकेंट करता है, ठीक। और अगर मान लीजिए कि हम हैं, हमको नौकरी चाहिए, चाहे हम किसी फर्म में काम करते हैं, इसके बावजूद भी हम उस फर्म को बदल करके दूसरे फर्म में नौकरी करने जाना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं सिचुएशन वांटेड। जो सिचुएशन वांटेड होता है वो इंडिविजुअल होता है, सिचुएशन वांटेड जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। ये वो पार्टी होती है जिनको नौकरी चाहिए, कि हमको नौकरी चाहिए, ऐसा में होता है। तो फिर दोनों के लिए क्लियर है। मान लीजिए कि आपको टाइपिस्ट चाहिए, ठीक है, अभी आपने इसके पहले वाले नोटिस में देखा है कि टाइपिस्ट चाहिए, या आपको ये कह लीजिए कि रिसेप्शनिस्ट चाहिए, टाइपिस्ट चाहिए या रिसेप्शनिस्ट चाहिए सिचुएशन वैकेंट के लिए। तो आपने सिचुएशन वैकेंट के लिए आप पुनः वैसे ही कॉलम बनाएंगे। आपने कॉलम बनाया, कॉलम में 2 तरह का सिचुएशन वैकेंट होता है। एक स्कूल वाले जो हैं सिचुएशन वैकेंट करते हैं, तो स्कूल वाले जो सिचुएशन वैकेंट करते हैं वो कभी कभी नोटिस में भी लिखा जाता है, कभी कभी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में जब लिखा जाता है तो उसको इस तरह से लिया जाता है कि सिचुएशन वैकेंट हो चाहे सिचुएशन वांटेड हो, यही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और जब सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड होता है तो उसका पहला अक्षर, तो फर्स्ट लेटर या तो रिक्वायर्ड लिखा जाता है या तो वांटेड लिखा जाता है। इधर रिक्वायर्ड आर वांटेड, ये पहला वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड होता है। क्या वांटेड है या क्या रिक्वायर्ड है, पोस्ट का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। पोस्ट है, किसको लिखवाया जाता है? ये इंस्टीट्यूशन का नाम दिया जाता है, और उसके बाद उसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन दे दी जाती है कि उसको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज दे दिया जाता है, ठीक। पर्सनालिटी के बारे में, प्लीजिंग पर्सनालिटी होना चाहिए, ठीक है। सैलरी निगोशिएबल होता है, अब आप उसका बायोडाटा मांगिए, ऐट। अब इसके बाद आप एड्रेस दीजिए कि किस एड्रेस पर आपको चाहिए, एड्रेस दीजिए, फ़ोन नंबर दे दीजिए, लेकिन आप टाइम लिमिट कर दीजिए,
टाइम लिमिट का मतलब कि कितने दिन में, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में क्या। तो अब इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शायद इसको समझने में आसानी होगी। एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं यहाँ क्लास एंड करता हूँ और मैं आपको वर्क दूंगा। और वर्क मेरा जो बेस होगा वो लास्ट एंड फाउंड कॉलम पे होगा और शेल और सिचुएशन पर। कुछ नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चंस मैं आपको देना चाहूँगा, नहीं कुछ तो 2 ही क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा कि आप उसको करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी आप जैसे भी पढ़ें, इट वुड बी easy to you to follow. And in my next video, once more I will discuss about all these things and what the remaining portions are. I will give a proper cut solution of the questions. I will discuss broadly, but my dear sir, I will not write over the board to write you and to copy you. You have to utilize your mind, and that will boost up you to enhance your power. Thank you. Have a good day. Bye bye.